Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। So today the Lord is going to speak to every one of you. आज परमेश्वर आप सबसे बात करना चाहते हैं। So we are coming in the end of this year. हम इस साल के अंत में आ गए हैं। So how the Lord is going to empower us and strengthen us to pray more remaining days. कैसे हमें परमेश्वर और बलवंत करेंगे और सामर्थ देंगे कि जो दिन हमारे बच गए हैं उसमें और हम प्रार्थना कर सकें। So how we can, with the great preparation, we can enter into this new year. हम बहुत तैयारी के साथ ये नए साल में प्रवेश करेंगे। So such a way God want to speak to us. ऐसे ही परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। Because every year is given by God as a gift of God. हर एक साल हमें दिया जाता है एक उपहार के रूप से हमारे जीवनों में। So we have to prepare with a great preparation. We have to enter into the new year. इसलिए बहुत तैयारी के साथ हमें नए साल में प्रवेश करना है। How we can prepare ourselves? कैसे हम अपने आप को तैयारी कर सकते हैं? So based on the word of God, we are going to meditate. परमेश्वर के वचन से आज हम ये जानेंगे। So in our home, there is a special function or any kind of celebration. We have to prepare for that. हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारियां करते हैं। So day and night we have to prepare. रात और दिन हम उसके लिए तैयारियां करते We हैं। used to give lots of hard work. हम बहुत सारा काम सबको दे देते हैं So after finally the day, the program day, और जिस दिन वो प्रोग्राम होता है so the people, those who are participated, और जो उसमें भाग लेते हैं so they used to appreciate. वो सब लोग हमें अच्छा बोलते हैं। Oh, you did it nicely. क्या आपने बहुत अच्छे से किया? You did it nicely. आपने बहुत अच्छे से किया। The food is very tasty. खाना भी बहुत अच्छा था। So such a good word by hearing, we will be happy. अच्छे शब्दों को सुनकर हम भी खुश हो जाते हैं। We will forget all the hard labor we did. हम जो भी मेहनत करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। So the appreciation word will make us more kind of comfortable. इसलिए जब उत्साहित के शब्द हमें सुनने को मिलेंगे तब हम और खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। The same way, वैसे ही every year is a gift of God. हर एक साल परमेश्वर के रूप से एक उपहार है। The first day of the every year, we have to prepare ourselves and enter into that new year. साल का जो पहला दिन होता है हमें अपने आप को तैयारी करना है और नए साल में प्रवेश करना है। With the lots of preparation. बहुत सारी तैयारियां हैं उस चीज के लिए। So that day, who will appreciate us? कौन हमें उस दिन हमें अच्छा बोलेगा? Jesus Christ will appreciate us. यीशु मसीह हमें अच्छे से हमें बोलेगा My son, my daughter, कि मेरे बेटे मेरी बेटी you did well, very nice preparation for the new year. नए साल के लिए आपने बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं। So now this new year, I am going to be with you. नए साल में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। I am going to help you. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। I will answer all your prayer. मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। I will perform the miracles in your life. मैं तुम्हारे जीवनों में अद्भुत कामों को करूंगा। Because you prepared well for the preparation. क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से अपने आप को तैयारी किया है। So that is the word of appreciation of Jesus Christ. यही यीशु मसीह हमें अच्छे से हमें बोलना चाहते हैं। So how we have to prepare for the new year? कैसे हमें नए साल के लिए अपने आप को तैयारी करना है? So take your Bible. अपनी बाइबल को आप खोल सकते हैं। Only the word I give you, please note it. Colossians chapter 4 verse 2. मैं आपको वचन दूंगा, उसको आप लिख सकते हैं। कुलोसियों 4:2। So here how we have to prepare to enter into the new year. यहाँ लिखा है कैसे नए साल में प्रवेश करने के लिए अपने आप को आप तैयारी कर सकते हैं। Colossians chapter 4 verse 2. कुलोसियों 4:2। So number 1, सबसे पहली the चीज Bible says, वचन ऐसे कहता है, continue steadfastly in prayer. आप प्रार्थना में निरंतर बने रहें। So to preparation for the new year is continuous prayer. नए साल में आपको बने रहने के लिए आपको प्रार्थना में लगे रहना है। So the remaining days you have to continuously pray, Lord, give me the new year with your blessings, Lord. और आपको जो दिन हैं अभी उनके उसमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर नए साल में मुझे बहुतायत से आप मदद कीजिए। So continuous prayer. आपको लगातार प्रार्थना करना Your है। prayer should never stop. आपकी प्रार्थना कभी रुकनी नहीं चाहिए। Never give up your prayer life. कभी अपनी प्रार्थना के जीवन में आप हारे नहीं। So your preparation should be a continuous prayer. आपको तैयारी करनी है प्रार्थना के साथ ज्यादा से ज्यादा।
from your heart आपके दिल से through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा You have to pray. आपको प्रार्थना करनी है Lord कि Jesus, प्रभु यीशु मसीह, thank you for this year. धन्यवाद परमेश्वर इस नए साल के लिए। Lord, give me the grace to pray more. प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं और प्रार्थना कर सकूं। Lord, I should not waste my time anywhere. परमेश्वर मैं अपना समय इधर उधर बर्बाद ना करूं। All the time I have to use the time given to me by you. हमेशा जो आपने मुझे समय दिया है उसको अच्छे से मैं इस्तेमाल करूं। Give me the grace to pray continuously. मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं लगातार प्रार्थना में लगा रहूं। So the continuous steadfast prayer is very essential. इसलिए लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So how we can pray continuously? कैसे हम लगातार प्रार्थना कर सकते We हैं? have to remember the sacrifice of Jesus Christ all the time. यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, अपने बलिदान को दिया, उसको याद करके हमें प्रार्थना करना है। Whenever we are looking upon the cross, जब भी हम क्रूस के पास देखते हैं, क्रूस के ऊपर देखते हैं, on the suffering of Jesus Christ, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सहा, हम उसको देखते हैं। our mind will be concentrate in prayer. हमारा जो दिमाग है वो प्रार्थना में आकर्षित हो जाएगा। Several times we can't pray continuously. कभी कभी हम देखते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते रेगुलर। Lots of distraction used to come. बहुत सारी ऐसी चीजें हमें परेशान करती हैं। Lots of worries used to come. बहुत सारी चिंताएं हमें परेशान करती We हैं। can't pray continuously. हम लगातार प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। That time what we have to do? उस समय हमें क्या करना है? We have to look upon the cross. हमें क्रूस की तरफ देखना है। Lord Jesus, on the cross you bled and died for me. प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे आप मेरे लिए मारे गए। Their entire body full of wounds and full of stripes. आपके पूरे शरीर पे कोड़े थे और पूरा आपका जो बदन था वो छलनी था। Lord, I want to pray continuously. प्रभु मैं लगातार प्रार्थना करना Give चाहता me the हूँ। concentration in prayer. मेरी मदद कर ताकि मैं पूरे ध्यान के साथ मैं प्रार्थना कर सकूं। Focusing the cross will help you to pray continuously. जब आप क्रूस की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी कि आप लगातार प्रार्थना कर सकें। On the cross, Jesus Christ sacrificed. क्रूस के ऊपर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। The Old Testament time, पुराने नियम में जब हम देखते you हैं, can note this word, आप इसको लिख सकते हैं, Exodus 29:38. निर्गमन 29 का 38। So this word of God says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, every day रोज on the altar of God, परमेश्वर के स्थान में 2 one-year-old lambs should be offered as a sacrifice. दो ऐसे जो छोटे भेड़ होते थे वो उनका बलि चढ़ाया जाता था। Every day this offering should be put in the altar. रोज ऐसा जो बलिदान दिया जाता था उस ऑल्टर पे। So because this is the Old Testament time, that was the continuous prayer before God through the sacrifice. पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो जब लगातार लोग प्रार्थना करते थे तो वो रोज रोज बलिदान चढ़ाते थे। Every day the 2 lambs should be offered or as a sacrifice. रोज 2 मेमने को वो बलिदान के रूप से चढ़ाते थे वेदी के ऊपर Continuously. लगातार। So that was the prayer during the time of the Old Testament time. जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो ऐसे प्रार्थनाएं की जाती थी। In the New Testament, अब नए नियम में Jesus Christ, He became our only sacrifice. यीशु मसीह हमारे लिए उस बलिदान के रूप से है। So now there is no need of any lamb should be offered as a sacrifice. अब हमें किसी की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। The Lamb of God became a sacrifice for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए उस बलिदान को दे दिया है। So now whenever we are remembering the cross, God will give us the grace to pray continuously. The spirit of prayer will become upon you. इसलिए जब हम उस क्रूस के ऊपर देखेंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। Through the sacrifice of Jesus Christ, we can pray continuously. जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है उससे हम लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। Remembering the sacrifice of Jesus Christ, you can pray continuously. यीशु मसीह के बलिदान को जब आप याद करेंगे तो आप लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। All the time inside our heart, the Holy Spirit, the fire should keep on strengthen our spirit to pray. हमेशा पवित्र आत्मा एक आग के रूप से हमारी आत्मा को जलाती है कि हम लगातार प्रार्थना कर सकें। Through the
anointing of the Holy Spirit, the fire anointing, we can pray continuously. पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक से हम लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। So Leviticus chapter 6:9 says, लेवी व्यवस्था 6 और उसका 9 ऐसे कहता है, in the altar, उस वेदी के ऊपर the fire should all the time kept burning. उस वेदी के ऊपर जो अग्नि थी वो हमेशा जलती रहती थी। So this is the one kind of the prayer life we can pray continuously with the fire of God. ये एक ऐसा प्रार्थना का जीवन है कि हम अपने जीवन में भी उस आग के अभिषेक से प्रार्थना करते रहें। So your continuous prayer is the preparation for the new year. जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो नए साल के लिए आप अपने आप को तैयारी करेंगे। So you have to pray through the sacrifice. आपको बलिदान के रूप से प्रार्थना करना है। You have to pray with the anointing, the fire anointing of the Holy Spirit inside your heart. पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक से आपको प्रार्थना करना है। So another word of God I want to give you, Daniel chapter 6 verse 16 and 20. दानियल 6 उसका 16 से लेकर 20 तक आप पढ़ सकते हैं वचन को। So here the Daniel praying continuously. यहाँ हम देख सकते हैं कि दानियल लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Even though he put inside the lion's den, उनको उस डेन में डाल दिया गया था। so that after that also he is praying continuously. जब शेरों की मान में उनको डाल दिया गया तो भी वो लगातार वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। The king, he don't know about the Lord Jesus Christ. He is giving the testimony about the Daniel. जो राजा यीशु मसीह को नहीं जानता था वो दानियल की गवाही दे रहा है। So he is asking to Daniel, Daniel, the God you prayed continuously, able to deliver you? He is questioning. वो पूछ रहा है कि क्या दानियल जिस परमेश्वर से तुम प्रार्थना करते हो क्या वो तुम्हें छुड़ा सकता है? So you prayed continuously. इसलिए क्या तुम प्रार्थना करते रहे लगातार? He helped you. उसने तुम्हारी मदद की। Daniel is answering. दानियल ऐसे कहता है, Yes, King, the same God I prayed continuously, He protected me. हाँ राजा, वही परमेश्वर जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ उसने मुझे बचाया है। So your continuous prayer will protect you from all the dangers. जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे तो हर एक परेशानियों से परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। So you have to enter into the new year with the continuous prayer. नए साल में आपको जब आप प्रवेश करेंगे तो आप लगातार प्रार्थना के साथ उसमें प्रवेश करिए। Daniel prayed continuously. दानियल ने लगातार प्रार्थना की। Your prayer should be also continuous without any gap. You have to pray. आपकी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए कि बिना रुके आप लगातार प्रार्थना में लगे रहें। So how the apostles they prayed? प्रेरित लोग कैसे प्रार्थना करते थे? Acts 6:4. आप प्रेरितों के काम 6 और उसका 4 में पढ़ सकते So हैं। here we are reading the word of God like this. यहाँ वचन में ऐसे लिखा है, We apostles, we will spend our time only in prayer and teaching the word. हम जो प्रेरित लोग हैं वो अपना समय कैसे निकालते हैं? वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में। We will all the time spend our time in prayer. हम हमेशा अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। So they take a strong decision. एक निर्णय लेना है So आपको। in the new year, नए साल में you should take the decision. आपको एक निर्णय लेना है I will pray continuously. कि मैं लगातार प्रार्थना करूंगा। I will read the Bible continuously. मैं वचन लगातार पढ़ूंगा। So such a kind of a decision will give you the grace to pray continuously. ऐसे निर्णय जब आप लेंगे तो आपको अनुग्रह मिलेगा कि आप लगातार प्रार्थना कर सकें। The apostles took a right decision in a right time. प्रेरितों ने जो निर्णय लिया सही समय पे लिया और सही निर्णय लिया। We will not waste our time with other matters. हमें अपना समय बाकी चीजों में व्यतीत नहीं करना है। We will only spend our time in prayer and reading the Bible. हमें अपना समय वचन को पढ़ने में और प्रार्थना में व्यतीत करना We है। will continuously pray and teach the word of God. हमें लगातार वचन को पढ़ना है और वचन को दूसरों को समझाना है। So this was their decision. ये उनका निर्णय था। So you have to pray with the decision in the new year. आपको भी एक निर्णय के साथ प्रार्थना करना है नए साल में। You have to pray continuously. आपको लगातार प्रार्थना करना At है। the same time you have to pray with the decision in your life. वैसे ही एक निर्णय लेकर आपको प्रार्थना करना है। Your decision will
very much take you into the high level of the spiritual life. जब आप एक निर्णय को लेते हैं तो आत्मिक स्तर में आपका स्तर और बढ़ जाता है। Daniel chapter 1:8. दानियल 1 और 8 में ऐसा लिखा है। So here Daniel and his friends Shadrach, Meshach, Abednego, they take a right decision, determination in the right time. यहाँ पे दानियल और उसके दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने सही समय पे सही निर्णय को लिया। So they took a decision. उन्होंने एक निर्णय लिया We will not defile ourselves with the king's meat. कि जो राजा चाहता है वैसे हम अपने आप को नहीं ढालेंगे। So the king's table, all the type of food will be there. राजा की जो वहाँ पे टेबल है उसमें हर तरह के पकवान हैं। So they are very much strict with their decision. वो बहुत निर्णय के साथ अपने बने रहते थे। They never, without control, they never enjoy everything. उन्होंने कभी भी अपने आप को हर चीज को आनंदित में नहीं रखा है। They take a decision. वो एक निर्णय लेते थे। So New Year is a time of decision. नए साल जो है वो एक निर्णय लेने का समय है। Your continuous prayer will help you to take the right decision. जब आप लगातार प्रार्थना में लगे रहेंगे तो आप सही निर्णय लेंगे। So what was the spiritual meaning of the decision of Daniel and his friends? इसका आत्मिक अर्थ क्या है जो दानियल और उसके दोस्तों ने लिया है? Lord, we will not defile ourselves with the worldly sin anymore. परमेश्वर, मैं अपने आप को उस जो दुनिया में पाप है उसमें नहीं जोड़ूंगा। The world is compromising world. Everywhere there is a sin. हम देख सकते हैं दुनिया में हर जगह पाप है, हर जगह पाप से लोग हैं। So we will not defile ourselves. पर हम अपने आप को उस पाप में नहीं डालेंगे। That should be your decision. आपका भी ये निर्णय होना Your चाहिए। continuous prayer will lead you into the decision making for God. जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे तो जो आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ आप ले पाएंगे। So the apostles, they are take the decision. We will spend our time only in prayer and teaching the word. प्रेरितों ने ऐसे निर्णय लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम दूसरों को बताएंगे। So dear friends, our continuous prayer will bring the God's miracle in our life. प्यारे दोस्तों, जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो परमेश्वर के चमत्कार हमारे जीवनों में आएंगे। So how Apostle Paul prayed? पौलुस ने कैसे प्रार्थना की हम देखेंगे। Acts 20:31. प्रेरितों के काम 20 उसका 31। So here Apostle Paul, he is telling, यहाँ पे पौलुस ऐसा कहते हैं, so 3 years I continuously give the teaching of the word of God to you. 3 साल तक मैं तुमको वचन के बारे में बताता रहा। So day and night I spend my time, I prayed for you. दिन और रात मैंने समय बिताया तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। So Apostle Paul, he is praying day and night. पौलुस दिन और रात प्रार्थना कर रहा है, आप देख So सकते he is हैं। keep on giving the right teaching of the word of God. वो सही जो सिखाता है लोगों को, सही बातें वो बताता है। So in our life also we have to pray for others. हमारी जिंदगी में भी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। So if you are praying for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, your prayer life will be more powerful. आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो और बलवंत हो जाएगा। You can able to pray continuously. आप लगातार प्रार्थना कर पाएंगे। So continuous prayer is very essential to enter into the new year with the God's plan. इसलिए परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए आपको और प्रार्थना में अपना समय को बिताना है नए साल में प्रवेश करते हुए। So we have to pray continuously. हमें लगातार प्रार्थना करना है। That we have to pray non-stop. हमें बिना रुके प्रार्थना करना है। We have to pray with a decision. हमें एक निर्णय लेकर प्रार्थना करना है। All the time our decision should be glorify the name of the Lord. हमेशा हमारे निर्णय ऐसे हों जो परमेश्वर की महिमा को लेकर आने वाले हों। Lord, coming new year, प्रभु, ये नए आने वाले साल में I will spend more time with you, Lord. मैं और समय आपके साथ बिताऊंगा। I will not waste the time with the social media anymore. सोशल मीडिया में मैं अपना समय और बर्बाद नहीं करूंगा। Only useful thing I will check my important message and emails. जो मेरे लिए जरूरत की चीजें हैं, मेरे ईमेल हैं, जो मेरे लिए मैसेज हैं, सिर्फ वही मैं देखूंगा। Otherwise I will not waste my time with this social media. मैं सोशल मीडिया में अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। Such a way you can take many decisions how the Lord is speaking to you. ऐसे ही आपको निर्णय लेना है कि कैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Lord, I will read the Bible more. परमेश्वर, मैं और बाइबल को पढ़ूंगा। Lord, I will spend more time by meditating the word of God. परमेश्वर, मैं ज्यादा समय बिताऊंगा कि मैं वचन पे मनन करूं। Lord, give me the grace. I like to receive the revelation from the word of God. परमेश्वर, मुझे ऐसी समझ दे कि वचन से क्या मुझे प्रकाशन मिल रहा है वो मैं कर सकूं, सीख सकूं। So such a way
way, we have to all the time continue in prayer. ऐसे ही हमेशा हमें प्रार्थना में बने रहना है। So all the time remember the sacrifice of Jesus Christ. हमेशा यीशु मसीह के बलिदान को आप याद रखें। In our heart, the fire anointing should all the time burn. The fire should not be it should kept burning in the altar. हमारे हृदय में एक आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, जैसे वेदी पे आग जलती रही थी। So the new year, नए साल में you have to prepare with a continuous prayer. आपको लगातार प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। So Colossians 4:2, I already gave this word. कुलूसियों 4:2 में पहले ही आपके साथ बता So चुका now हूँ। the next word says, अब जो अगला वचन है वो कहता है, being watchful. आप हमेशा आप ध्यान से रहें, Being watchful. हमेशा ध्यान से रहें, We should be all the time watchful. हमेशा हमें ध्यान से रहना है। So if if one of the thief is coming to your home, अगर एक चोर आपके घर में चोरी करने आ रहा he is है, sending a message to you. अगर वो आपको एक मैसेज भेज रहा है, Tomorrow I am going to come and steal in your home at 10 o'clock in the night. कि कल रात को 10 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा चोरी करने के लिए, What you will do? क्या करेंगे आप? You will put off the light and you will snoring with sleeping. क्या आप लाइट को बंद कर देंगे और आप सोने चले जाएंगे? What you will do? क्या करेंगे आप? You will be watchful. आप ध्यान रखेंगे, You will be order the special light. आप एक नई लाइट को मंगवा लेंगे, You will order the CCTV camera. आप सीसीटीवी कैमरा को भी मंगवा लेंगे, Wherever you can fix it. जहां पर भी आप चाहते हैं उसे फिक्स करेंगे। You will watch in the TV, आप टीवी में देखेंगे, in the CCTV, सीसीटीवी को, whether he is coming, कि वो आ रहा है, which direction he is coming, कहां से वो आ रहा है, how he is. कैसा है वो, He is bringing something, the weapon in his hand. क्या आप अपने साथ कुछ वो हानि करने के लिए लेके आ रहा है क्या? So also you will call the police. आप पुलिस को भी बुलाएंगे, The police will be also ready and alert. और पुलिस भी हमेशा तैयारी से आएगी। Watchful. हमेशा ध्यान रखें। Why? क्यों? To protect from the thief. ताकि आप चोर से बचे रहें। But Jesus Christ said in the Bible, यीशु मसीह ने वचन में ऐसा कहा I am going to come as a thief. कि मैं एक चोर के समान आऊंगा, I will come immediately. मैं अचानक से आ जाऊंगा। How the twinkling of the eyes, within a fraction of second I will come back. पलक झपकने से पहले ही मैं वहां वापस आ जाऊंगा। Be watchful. आप ध्यान रखें, Be watchful. ध्यान रखें। New year we have to be watchful and pray. नए साल में हमें ध्यान रखना है और प्रार्थना में बने रहना है। That's why Bible says watch and pray. इसीलिए वचन कहता है कि ध्यान रखो और प्रार्थना में लगे रहो। How we should watch and pray? कैसे हम ध्यान रखेंगे और प्रार्थना में लगे रहेंगे? We have to pray with the armor of God. हमें परमेश्वर के जो हमें आर्मर दिए गए हैं उसके साथ हमें प्रार्थना करना है। So Bible says, वचन ऐसा कहता है, Ephesians chapter 6, इफिसियों 6 में verse 10 to 17. 10 से 17 में Here it is written about the armor of God. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के आर्मर के बारे में। We have to watchful with the weapon, the heavenly armor. जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से आर्मर दिए हैं, वेपन दिए हैं, उसे ध्यान से हमें देखना है। So if you read verse 10 onwards, अगर आप 10 से उसे पढ़ेंगे, the Bible says, वचन ऐसे कहता है, finally, अंत में, finally, अंत में, dear children of God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, be strong. आप बलवंत हो Be जाइए, strong in the Lord परमेश्वर में बलवंत हो and in the जाइए, mighty power. और बहुत से अभिषेक में बलवंत हो The verse जाइए। 11 says, और 11 में ऐसे लिखा the है, enemy is targeting us. जो चोर है वो हमें देख रहा है, Where there is a gap, जो दुष्ट है वो हमें देख रहा है कि कहाँ है ऐसी वो जगह, where there is a small gap, I can target that place. कहाँ वो ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ मैं उसको नाश कर सकता हूँ, Where I can give her some kind of the worldly pleasure by watching something on the mobile. कहाँ मैं ऐसे उसको व्यतीत कर दूं कि वो अपने फोन में कुछ देखे। Such a way the devil is targeting us. ऐसे ही जो दुष्ट है वो हमें पकड़ता है। So we have to watchful. हमें ध्यान रखना है। So the armor of God, it is written, the continuous word. जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के जो हमें आर्मर दिए गए हैं उनके बारे में लिखा गया So है। you have to protect yourself. आपको अपने आप को बचा के रखना है। You have to protect yourself with the armor of God. परमेश्वर के जो आर्मर है उससे आपको बचा के रखना है। You should full armor of God. आपको भरपूर रहना है।
all the time covered yourself with the full armor of God. हमेशा पूरे आर्मर के साथ आप कवर रहें, Be watchful. आप ध्यान रखें। Jesus is going to come back very soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। Before that we have to watch and pray. उससे पहले ध्यान रखना है, हमें प्रार्थना करना है। So New Year preparation, watch and pray. नए साल में ध्यान रखना है और प्रार्थना करना है। Not only 31st December night, सिर्फ खाली 31 दिसंबर की रात को ही नहीं, every day we have to watch and pray. रोज हमें ध्यान रखना है, प्रार्थना करना We है। have to be watchful in prayer. हमें प्रार्थना में ध्यान से ध्यान रख के We प्रार्थना are करना called है। by God as a watchman. हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं वॉचमैन के जैसे। We are watchmen for our soul first. अपने जो हमारी जो आत्मा है उसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को देखने वाले We हैं। are a watchman for our family. अपने अपने परिवार के लिए हम पहले वॉचमैन हो। We are watchmen for our own place. हम जहाँ रहते हैं उस जगह के लिए हम पहले वॉचमैन हो। Then the Holy Spirit will take you as a testimony for the other places. तब पवित्र आत्मा आपको गवाही के रूप से दूसरी जगह लेके जाएगा। So be watchful. इसलिए आप ध्यान रखें। The very powerful preparation for the new year is watch and pray. नए साल के लिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें और प्रार्थना में लगे रहें। Every day and night watch and pray. दिन और रात ध्यान रखें, प्रार्थना में लगे रहें। Then the God's plan will be given to you. तब परमेश्वर का जो योजना है वो आपको दी जाएगी। So finally, और अंत में the same word says, ये वचन ऐसे कहता है, Colossians 4:2 says, कोलोसियों 4:2 कहता है, how we have to pray. कैसे हमें प्रार्थना करना We है। have to pray continuously. हमें लगातार प्रार्थना करना है, We have to pray watchfully. हमें ध्यान से प्रार्थना करना है And we have to pray with the thanksgiving. और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। Thanksgiving prayer. धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना That is है, very important. बहुत जरूरी है वो। So we have to pray. We have the preparation for the new year is continuous prayer. जो नए साल के लिए जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो लगातार प्रार्थना करना है And watchful prayer. और ध्यान रख के प्रार्थना करना है, Thanksgiving prayer. धन्यवाद के साथ प्रार्थना So करना this prayer will take you into the new year with a great God's plan. है। ये प्रार्थना आपको नए साल में एक परमेश्वर की योजना में लेकर जाएगी। How we can do the Thanksgiving prayer? कैसे हम धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं। Psalm 103:1 and 2. वचन संहिता 103 1 और 2 में लिखा है। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसे कहता है, Bless the Lord, O my soul. प्रभु मेरे तू आत्मा को आशीष कर। Bless the Lord, O my soul. प्रभु मेरी आत्मा को आशीष कर And all that is within me, bless His holy और name. जो कुछ भी मेरे अंदर है वो उसके नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul. वो आत्मा मुझे धन्य कहे And never forget what God has done for you. और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। This is the Thanksgiving ये prayer. धन्यवाद की प्रार्थना है। In the life of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में He all the time give thanks unto the वो Lord. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। Whenever He did a miracle, जब भी वो आश्चर्य काम करते He थे give thanks unto the वो Lord. परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। Whenever He started before the miracle, और जब वो आश्चर्य क्रम करने से पहले Bible says, बाइबल बताती है thousands of people are sitting before Him for food. हजारों लोग उनके पास बैठे थे खाने के He लिए। is having just 2 loaves and the 5 fishes in His hand. 2 रोटी और 5 मछली उनके पास The थी। Bible says, वहाँ वचन कहता है He take it in His hand, उन्होंने अपने हाथ में उसको लिया lifted towards the और heaven, उसको स्वर्ग के रूप से उठाया and Jesus give thanks unto the Lord. और यीशु मसीह ने धन्यवाद किया परमेश्वर को। Thanksgiving prayer will solve all your financial problems. धन्यवाद की जो प्रार्थना है वो आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं सबको मिटा So देगी। this new year you have to enter without any loan problem. इसलिए जब आप नए साल में प्रवेश करेंगे तो कोई भी लोन की दिक्कत आपको नहीं होगी। So hereafter you will never borrow. यहाँ आज के बाद आप कभी भी किसी से लेंगे नहीं। You have to take a decision coming new year onwards. I will never borrow any money in bank. आपको ये निर्णय लेना है कि आने वाले समय में मैं बैंक से कोई भी लोन नहीं लूंगा। I will not take any loan hereafter. मैं कोई भी लोन नहीं लूंगा आगे Whatever से। the God's blessing given to me, I will live with that. जो भी परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है मैं उससे चलूंगा।
with the thanksgiving prayer. धन्यवाद के साथ प्रार्थना, It will remove all your financial वो problem. आपकी सारी जो आर्थिक परेशानियां हैं उसको दूर कर देगी। Bible says, वचन ऐसे कहता है, you come, you take all the matters in prayer with thanksgiving. आप सारी चीजों को प्रार्थना में आप परमेश्वर के पास लेकर जाइए। Do not worry for किसी anything. चीज के लिए चिंता मत करिए। You take all the matters in prayer with thanksgiving. सारी चीजें आप, सारी परेशानियां आप परमेश्वर के पास ले आइए। All the time give thanks unto the Lord. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करिए। So Jesus Christ raised Lazarus from the dead. यीशु मसीह ने लाजर को आप मुर्दों में से जीवित किया। How was the prayer of Jesus? कैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की है? Lord, I thank you, you are hearing my prayer. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। So in the midst of the problematic situation, you should give thanks unto the Lord. परेशानियों के बीच में भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। So that is the God's plan. वही परमेश्वर की योजना है। So all the time you should be thankful. हर समय आपको धन्यवाद करना है। 1 Thessalonians chapter 2:13 says, पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 ऐसे कहता है, never stop thanking God. कभी भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करने से ना रुकें। 1 Thessalonians 2:13. पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 It clearly says, यहाँ पे ऐसा लिखा है, never stop thanking God. कभी भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करने से ना रुकें। We have to continuously prayer. हमेशा हमें लगातार प्रार्थना करना है। We have to do continuous thanksgiving. हमें लगातार धन्यवाद भी करना है। So from the Genesis to Revelation, हम देख सकते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक all the mighty things God did, we have to count everything and give thanks. जो भी परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम हमारे जीवनों में किया, याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करना है। So the Psalm 136, it's a great psalm of thanksgiving. भजन संहिता 113 जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत धन्यवाद का विषय है। 136. 136 So it says about the thanksgiving prayer. वो हमेशा धन्यवाद की प्रार्थना में बताया गया है So उसमें। you have to read this psalm in the new year. भजन संहिता ये वचन आपको पढ़ना है रोज। So before entering into the new year, you have to pray this thanksgiving psalm. नए साल में प्रवेश करने से पहले आपको भजन संहिता 136 को पढ़ना है। Remembering all the things God has done in your life. जो भी आश्चर्य काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, याद करके उसको धन्यवाद करें। You have to count all your blessings. आपको अपनी जो भी आशीषें हैं उनको गिनना है। You have to name every blessing one by one. हर एक जो आपको आशीषें मिली हैं उनको नाम देना है And give thanks unto the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद करना है। Psalm 136 says, भजन संहिता 136 में ऐसा लिखा है, remember your God who protected you and remembered you in your low estate. परमेश्वर को हमेशा मनन करें, परमेश्वर को मनन करें जब भी आप नीचे होते हैं। So his grace endures forever. उसकी जो करुणा है वो सदा के लिए His है। grace endures forever. उसकी करुणा सदा के लिए है। Thank the Lord how God protected your family. धन्यवाद करें परमेश्वर का, कैसे परमेश्वर ने आपके परिवार की सहायता की मदद How की, he did the miracles in your family. कैसे आपके परिवार में आश्चर्य क्रम को परमेश्वर ने किया। By remembering everything and say thanks unto the हर Lord. एक चीज को याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। So this is the God's plan to enter into the new year. यही परमेश्वर की योजना है नए साल में प्रवेश करने से पहले। So 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 जब हम पढ़ेंगे, So this word of God says, वहां वचन ऐसे कहता है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17, Rejoice always. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Pray without ceasing. आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Give thanks in all circumstances. हर एक चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद करो, For this is the will of God in Christ Jesus about you. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। You see the two verses are the same. जब आप देख सकते हैं दोनों जो वचन है वो एक ही हैं। Colossians 4:2 says, कोलोसियों 2:4 और उसका 2 ऐसे कहता है Continue steadfastly in prayer. कि हमेशा लगातार प्रार्थना में लगे Be रहें, watchful.
हमेशा ध्यान रखें in with thanksgiving. और धन्यवाद में रहें। 1 Thessalonians 5:17 says, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, rejoice always, हमेशा आनंदित रहें, pray without ceasing, हमेशा आनंदित रहें, give thanks in all circumstances, हर एक चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद for करें, this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा How है। much you are rejoicing. कितना आप आनंदित होते हैं। So Bible says, enter in His presence with the thanksgiving of your heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं तो आनंद के साथ जाइए, Rejoice all the time. हमेशा आनंदित रहिए। Enter the new year with a great rejoice. नए साल में जब आप प्रवेश करते हैं एक बहुत महान आनंद के साथ प्रवेश So the करिए। preparation for the new year is you have to rejoice in the Lord all the time. नए साल में बने रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए आप हमेशा आनंद में बने रहें, Rejoice हमेशा आनंद में in रहें, all circumstances. हर एक बात में, हर एक चीजों में, In all हर circumstances. एक बातों में, हर एक चीजों में Rejoice in the Lord. आनंदित रहें परमेश्वर में। That is your strength. वो ही आपका बल है। So now the Holy Spirit is going to prepare you for this new year. अब पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगी ये नए साल के लिए। How many of you are ready to enter this new year with a great God's plan? कितने लोग हैं जो आप तैयार हैं परमेश्वर की नई योजना के लिए जो आपके लिए इस साल में है। Increase your prayer आपके time. प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ाएं, All the time watchful and pray. हमेशा ध्यान रखें और प्रार्थना करें, All the time give thanksgiving to the Lord. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। Simple thing, if you do such a things, जब आप ये सब चीजें करेंगे Jesus will bless you more. यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष You will देंगे। never lack anything. किसी भी चीज की आपको कमी घटी नहीं God होगी। will be your provider. परमेश्वर आपके लिए हर चीज मुहैया करेगा। According to Philippians 4:19, फिलिपियों 4:19 के अनुसार God will provide all your need. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा And His riches in glory by Christ Jesus will be revealed to you. और उसका अनुग्रह आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा बढ़ता जाएगा। You will never lack anything. किसी भी चीज की आपको कमी घटी ना Psalm होगी। 34:10 says, भजन संहिता 34 का 10 कहता है, those who seek the Lord shall never lack जो anything. परमेश्वर के ओर ध्यान लगाते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होती Those है। who seek the Lord shall never lack anything. जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। Matthew 6:33 says, मत्ती का 6 का 33 कहता है, seek God's kingdom and His righteousness. पहले परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज करो। Seek all the time the God's kingdom. हमेशा परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। Whatever you want, it will automatically come to जो you. भी आपको चाहिए वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। Whatever you want, it shall be given unto जो you. भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। Enter this new year with a great dedication. इस नए साल में एक डेडिकेशन के साथ आप इसमें नए साल में Do जाएं। not lean on your own understanding anymore. अपनी समझ से आप और ना चलें। Commit everything into the God's plan. हर एक चीजों को परमेश्वर की योजना पे डाल दें। Commit your ways in the God's plan. आपके जो रास्ते हैं उनको परमेश्वर की योजना में डाल दें। Rejoice always. हमेशा आनंदित रहें। Pray without ceasing. प्रार्थना करें बिना चिंता के साथ, Give बिना भय के thanks in साथ। all circumstances. हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें। Enter the new year with the God's plan. नए साल में एक परमेश्वर की योजना के साथ प्रवेश करें। Today the Lord want to prepare every one of you. आज परमेश्वर आप हर एक को तैयार करना चाहता है। How many of you want to pray for the preparation for the new year? आप कितने लोग तैयार हैं कि नए साल में प्रवेश करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता You हूँ। close your eyes right अपनी now. आंखें आप बंद करें, हम प्रार्थना Now करेंगे। the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। Several of you are not able to pray. आप काफी लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। There is a disturbance in your prayer life. आपके प्रार्थना के जीवन में बहुत सारी डिस्टरबेंस है। Now the Holy Spirit is coming upon such a people. पवित्र आत्मा आप हर एक के ऊपर आ रहा है। Receive your deliverance. आप आज छुटकारे को पा लीजिए। Now the Lord is pouring out the spirit of prayer upon you. परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा को आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। The spirit of prayer is coming upon you. प्रार्थना की आत्मा आप लोगों के ऊपर आ रही है। And the spirit of supplication is coming upon you. प्रार्थना का जीवन आपके ऊपर आ रहा The है। spirit of interceding is coming upon you. प्रार्थना का जीवन आपके ऊपर आ रहा है। You are going to pray आप more. और प्रार्थना करेंगे। Oh, the Holy Spirit is touching such
such a people right पवित्र now? आत्मा आपको छू रहा है। How many of you are having the problem in reading the Bible? कितने ऐसे लोग हैं जिनको वचन पढ़ने में बहुत परेशानी होती Now है। the Holy Spirit is coming upon such a people. पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर आ रहा Today है। onwards you will read the Bible more. आज के बाद आप ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ेंगे। The word of God, the Bible is going to be like a milk and honey for you. वचन आपके लिए दूध और शहद हो जाएगा। You are going to love to read the word of God. आप आनंद से खुशी के साथ आप वचन को पढ़ेंगे। So how many of you are having the sleepiness, drowsiness during the time of the Bible reading? कितने ऐसे लोग हैं जब वो वचन पढ़ते हैं उनको नींद आती है। That is the evil spirit. वो शैतान की आत्मा है। The now the Holy Spirit is coming upon such a people. ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। Every spirit of sleeping mood and the drowsiness before the Bible reading, it should be get out and go away in Jesus' name. ऐसे जो सोने की आत्मा लेके आने वाले शैतान को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। Receive your deliverance now. अभी के अभी अपने छुटकारे को आप ले लीजिए। Now the Holy Spirit is preparing every one of you to pray more for the new year. पवित्र आत्मा आप सबको तैयार कर रही है कि आप नए साल के लिए प्रार्थना करें। Every one of you connect with the Holy Spirit now. आप सब पवित्र आत्मा से जुड़ जाइए। The Bible says बाइबल ऐसे बताती है the flesh is weak, जो हमारा शरीर है वो तो निर्बल है, the spirit is willing. पर जो हमारी आत्मा है वो चाहती है। The spirit is जो willing. आत्मा है वो चाहती है। Now allow the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप आने दें। The Holy Spirit is coming and filling every one of you. पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर आ रहा है और आपको भर रहा है। All the unwanted spirit of distraction, disturbance, every spirit of fear, get out. सारी ऐसी डर लाने वाली आत्माएं और डिस्टर्बेंस लानी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। Lord, set your children free प्रभु now. अपने लोगों को आप छुटकारा दीजिए। The Bible says, बाइबल ऐसे बताती है where there is a spirit of God, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे छुटकारा है। Receive your liberty and deliverance आज now. आप अपने छुटकारे को ले लीजिए। The Holy Spirit is preparing you for the new year. पवित्र आत्मा आपको नए साल के लिए तैयार कर रही है। All the time you will be pray continuously. हमेशा वो आपके साथ प्रार्थना करेगी लगातार। You will be watchful and pray. आप ध्यान रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। Watch and pray. ध्यान रखेंगे, प्रार्थना The करेंगे। evil days are जो coming. दुष्ट दिन आने वाले हैं, When there is a daytime, जब ऐसे दिन का समय होगा, when there is a favorable time, जब ऐसा समय होगा, increase your prayer अपने time. प्रार्थना के समय को और बढ़ाएं। All the time grow in the Holy Spirit. हमेशा आत्मा में बढ़ते जाएं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए। Lord, continuously prepare your children more and more for the new year. प्रभु आपके लोगों को आप तैयार कीजिए नए साल के लिए। The coming year is, the new year is going to be year of prayer. आने वाला साल प्रार्थना का साल हो उनके जीवनों में। You are going to pray more. और प्रार्थना करें। You are going to read the Bible आप more. और वचन को पढ़ेंगे। You are going to grow in your spiritual life आप more. और आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। The new year is going to be a year of rejoicing. नए साल आपके लिए एक आनंद का साल होगा। Rejoice in the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के में आनंद का साल The होगा। year of thanksgiving. धन्यवाद देने का साल होगा। The year of praising परमेश्वर God. की महिमा करने का साल The year होगा। of singing God. परमेश्वर के लिए गाने का साल होगा। The year of glorifying परमेश्वर God. की महिमा करने का साल होगा। Thank you, Lord, for all your blessings. धन्यवाद परमेश्वर आपके सब आशीषों के लिए। Lord, let your children enter into this new year with a great preparation. प्रभु आपके लोग नए साल में बहुतायत से तैयारी के साथ प्रवेश करें। Everyone full of prayer, Lord. सब लोग प्रार्थना में और बढ़ते जाएं। Prepare every home. हर एक घर को आप तैयारी कीजिए। Every home should be a house of हर prayer. एक घर एक प्रार्थना का घर हो। Every home should be filled with the Holy हर Spirit. एक घर पवित्र आत्मा से भरा रहे। Every member of the home should be love the हर Lord. एक परिवार का सदस्य परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो। Everyone should serve the Lord. Myself and my household will serve the Lord. मैं और मेरा घराना परमेश्वर के लिए सेवा करेगा। Like Joshua, every family should be changed into the Joshua family. यहोशू के जैसे हम अपने परिवार हमारा बदलता जाए। Every family should be the Joshua generation.
generation. हर एक जो परिवार है वो यहोशू के परिवार हो The जाए। new year is a preparation for the Joshua generation. नया साल जो हो वो यहोशू की जनरेशन का जैसा हो जाए। The people of God is going to be raised up and do mighty things. प्रभु आपके लोग खड़े हों और अद्भुत कामों को वो करें। Lord, pour out your spirit of prayer upon every प्रभु home. अपनी प्रार्थना की आत्मा हर एक घर पे ऊपर आप डाल दें। Every home should rejoice in the Lord all the हर time. एक घर प्रभु की आत्मा से भर जाए। Every day there should be a thanksgiving prayer in every home. हर एक घर में धन्यवाद की प्रार्थना हो। All the time thanksgiving prayer. हमेशा धन्यवाद की प्रार्थना हो। Every home should be full of the heavenly हर fire. एक घर स्वर्ग की आग से भर जाए। Every home in the altar, in their home, all the time the fire should be keep burning. हर एक घर में उस वेदी पर वो अग्नि हमेशा जलती रहे। Lord, the fire should not come प्रभु down. वो आग बुझने ना पाए। Every day the fire should increase. हर दिन वो आग बढ़ती जाए। Thank you, Lord, for your grace. धन्यवाद परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.